class 6, chapter number 2, that is components of food. What is it? It is components of food. In this lesson, in the previous lesson we have studied, the first topic we have studied, it is already studied by us, that is why we need food. Okay? Why we need food, that we have already studied. What is the necessity of food? Number 1, food gives us energy. Number 2, food gives us protection from diseases. Number 3, food gives us material for growth. Okay, that is why we need food. We need to consume food. That we have studied in our previous lesson. Okay, now we are going to see that what is inside the food. What is inside the food, because of which we can perform all the activities. हमें growth करनी है तो food हमें ऐसा क्या देता है जिसकी वजह से हमारी growth हो सकती है. Okay, so that we are going to see now. The second part, why we need food, we have covered it in our first period, first lesson. Now we are focusing on components of food. Components of food. We are going to focus on components of food. Component means what? Components means substances. Components means substances that we are getting from food. Okay, so we know another name for it. What are they? They are called as what? Nutrients. Okay, see, components of food. Components of food that are essential for our body. Components of food that are essential for our body are called, we call them as, are called nutrients. Components of food that are essential for our body are called nutrients. Components of food that are essential for our body are called nutrients. Okay, तो ऐसे कौन कौन से nutrients हैं जो हमें food से मिलते हैं? See, nutrients that we get from food are, number 1, carbohydrates. Number 1, carbohydrates. Number 2, fats. Number 3, proteins. Number 4, what? Vitamins. And number 5 is minerals. These are 5 components that we get from food. What are they? They are carbohydrate, fat, protein, vitamins and minerals. Carbohydrate, fat, protein, vitamins and minerals. What are they? Carbohydrate, fat, protein, vitamins and minerals. These are nutrients that we get from food. Okay? अब ये जो nutrients हैं, इनमें से some nutrients we need in large amount. For example, wheat. Wheat provides us carbohydrate, and we take 2 to 3 to 4 chapatis daily. है ना? Rice we take in large quantity in comparison with salt. Salt we take a little bit in our food. So some components we need in large quantity and some components we need in small quantity. तो जो large quantity में हमें लगते हैं, they are called as macronutrients. These 3, carbohydrate, fat, protein, they are called as macronutrients. Why macro? Because they are needed in large quantity. We need carbohydrate, protein and fat in large quantity. That is why they are called as macronutrients. And vitamins and minerals, we need them in small quantity. That is why they are called as micro. Macro means large, micro means small. Micronutrients. Okay. Why they are called as micronutrients? Because
We need them in small quantity. We need them in small quantity. That is why they are called as micronutrients. Okay. So this is about nutrients that we get from food. Carbohydrate, fat, protein, they are called as macronutrients because we need them in large quantity. Vitamins and minerals, they are called as micronutrients because we need them in small quantity. Okay. Now we are going to see what these food items, food nutrients provide us. What is provided by carbohydrate? Carbohydrate means I am writing functions now. What are the uses of these nutrients that I am writing in short? What does carbohydrate provide us? Carbohydrate provide us energy. Provide us energy. कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है. हमें कोई भी वर्क, कोई भी टास्क अगर करना है तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए. दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय कार्बोहाइड्रेट. दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय व्हाट? इट इज प्रोवाइडेड बाय कार्बोहाइड्रेट. ओके. फैट also provide us energy. Provide us energy. Provide us energy. लेकिन दोनों में फर्क है. Carbohydrate provide us energy. Fat, in the form of fat, energy is stored in our body. हमारी बॉडी में कुछ लोग जो बहुत ज्यादा खाना खाते हैं वो ज्यादा फैट होते हैं ना. फैट एक सब्सटेंस है जो क्या, जिसको चर्बी बोलते हैं हम. चर्बी नाम आपने सुना होगा. जो खाना हमने खाया, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे लगी वो मैं अभी यूज करती हूँ, है ना. और जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो मेरे बॉडी में फूड की वजह से गई है, दैट एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट. जो ये वाला रीजन अपने स्किन के अंदर की साइड का रीजन होता है ना, स्किन के अंदर फैट की लेयर बनती है. ठीक है. ये लेयर जैसे जैसे आप ज्यादा अमाउंट ऑफ फूड खाते गए तो वो लेयर की थिकनेस बढ़ती है और आप फैट ओबेस होते हैं. और फॉर एग्जाम्पल अगर कभी हमें खाने को नहीं मिला, कई लोग फास्ट रखते हैं, फास्ट के ड्यूरेशन में कुछ नहीं खाते. कुछ लोग बहुत खाते, वो बात अलग है मेरे जैसे. लेकिन कुछ लोग फास्ट बहुत जो फास्ट होते हैं बहुत सीरियसली करते, उपवास, कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पीते. जनरली जो गणपति फेस्टिवल में उपवास करते हैं या नवरात्रि में 9 दिन कुछ नहीं खाते, मर जाते हैं क्या? नहीं. क्यों? बिकॉज देयर इज एनर्जी स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फैट. 4-5 दिन नहीं खाओगे तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या होंगे? थोड़े से दुबले पतले हो जाओगे, है ना. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जो फैट के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, ये एनर्जी बॉडी क्या करती है? कंज्यूम करती है. और इसके वजह से अगर आपको रेडीमेड फूड नहीं मिला, मतलब रेडी फूड आपके बॉडी में नहीं गया, तो भी आपके बॉडी में जो स्टोर्ड फूड है वो आप क्या कर सकते हो? इस्तेमाल कर सकते हो. ओके. सो दैट इज द फंक्शन ऑफ फैट. नंबर 1, इट प्रोवाइड अस एनर्जी. नंबर 2, इट स्टोर एनर्जी इन आवर बॉडी. स्टोर एनर्जी इन आवर बॉडी. और एक फंक्शन है फैट का. व्हाट इज इट? इट कीप अस वार्म. हमें गर्म रखती है. इट कीप अस वार्म. फैट कीप अस वार्म. हमें गर्म रखती है. हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में फैट हेल्प अस. ओके. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ फैट्स. प्रोवाइड अस एनर्जी, स्टोर एनर्जी इन आवर बॉडी एंड कीप अस वार्म. ओके. इसके बाद में प्रोटीन. व्हाट आर प्रोटीन? प्रोटीन्स आर material necessary for building of our body. For example, ये रूम अगर आप कंसीडर करो तो ये बनाने के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल यूज हुआ है ना. ये वॉल बनाने के लिए सीमेंट, ब्रिक्स, सैंड, ये चीजों का इस्तेमाल हुआ है. तो ये जो मटेरियल हमें लगता है हमारी बॉडी के भी, तो बोन किसी चीज से बने हैं, हमारी स्किन किसी चीज से बनी है, हेयर इज मेड अप ऑफ सम मटेरियल. तो ये मटेरियल हमें प्रोवाइड करता है प्रोटीन. Protein provides material for building of our body. It helps in growth and repairing of our body. It helps in growth and
रिपेयरिंग ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के रिपेयरिंग के लिए या ग्रोथ के लिए। ग्रोथ मतलब हम हाइट वाइज बढ़ते हैं, हमारी बोन की लेंथ बढ़ती है, हमारा वेट बढ़ता है, बराबर है ना। ये सारी चीजें जो हमारी इंक्रीज होती है, तो ये इंक्रीज होने के लिए मटेरियल प्रोवाइड करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन हेल्प अस इन ग्रोथ, प्रोटीन हेल्प अस इन रिपेयरिंग ऑफ आवर बॉडी। अगर कोई बच्चा गिर जाता है, उसको लग जाता है, कुछ समय के बाद में उसकी जो जख्म है वो पूरी तरह से भर जाती है, अच्छी हो जाती है ना, ऐसे लगता है कि कभी कुछ लगा ही नहीं था। तो ये किस वजह से हुआ, बॉडी ने खुद को रिपेयर कैसे किया। किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो फ्रैक्चर होने के बाद में वो अपने आप जुड़ जाता है। मेडिसिन की हेल्प से आप उसकी प्रोसेस को क्या करते हो, फास्ट करते हो। बट अगर मेडिसिन नहीं लिए तो भी कुछ समय के बाद में वो अपने आप खुद को रिपेयर करता है। तो ये जो रिपेयरिंग के लिए मटेरियल लगा वो किससे मिलता है, दैट इज obtained from protein. Okay, so protein it help in growth and repairing of our body. Next is vitamins and minerals. Vitamin and mineral, they are necessary for proper working of our organs. They are vitamins and minerals, they are necessary for, means I can write they help in proper functioning, they help in proper functioning of different organs. हमारी बॉडी में जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, वो अलग अलग ऑर्गन्स को प्रॉपर वर्किंग के लिए क्या करते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स लगते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आप सबको पता है कि बोन हमारे स्ट्रॉन्ग रहने के लिए, आप एडवर्टाइजेस वगैरह में देखते हो, फॉर स्ट्रॉन्ग बोन यू नीड व्हाट, you need milk. Why? Because milk contains calcium. So what is calcium? Calcium is a mineral. Calcium is a mineral. किस ऑर्गन के काम की चीज है, बोन्स की। In the same manner, calcium is useful to our teeth. Calcium is useful to our hair. Okay. उसके बाद में sodium is useful for our brain, for our nervous system. उसके बाद में विटामिन ए आइंस के लिए जरूरी है। तो ये जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, ये अलग अलग ऑर्गन्स, आपको पता है कुछ लोगों का ये गला बड़ा होता है, उसको वाइटर बोलते हैं। वो क्या होता है, हमारे गले में ग्लैंड प्रेजेंट होती है, थायराइड ग्लैंड, उसको आयोडीन नहीं मिला तो उसकी साइज बड़ी होती है। आयोडीन क्या है, मिनरल, किस ऑर्गन के काम की चीज है, थायराइड ग्लैंड। तो ऐसे अलग अलग ऑर्गन्स में प्रॉपर्ली वर्किंग करना चाहिए। फॉर दैट पर्पस वी नीड विटामिन्स एंड मिनरल्स। फॉर दैट पर्पस वी नीड व्हाट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसके अलावा विटामिन्स एंड मिनरल्स दे हेल्प इन fighting diseases. They helps in what? They helps in fighting diseases. Okay, so these are different nutrients and what functions they perform. Okay, what are different types of nutrients? Carbohydrate, fat, protein, vitamins and minerals. Carbohydrate, fat, protein, vitamins and minerals. Carbohydrate provide us energy, fat provide us energy, store energy in our body and keep us warm. Proteins help in growth and repairing of body. Vitamins and minerals, they help in proper functioning of different organs and they help in fighting diseases. इन पांच के अलावा दो कंपोनेंट्स फूड के ऐसे हैं जिनको न्यूट्रिएंट तो नहीं बोला जाता, क्योंकि वो एक्चुअल में हमारे बॉडी को कुछ देते नहीं है, लेकिन स्टिल दे आर इम्पोर्टेंट. व्हाट आर दे? आई एम राइटिंग दोस हियर. ओके, दे आर, I am writing here number 6, that is component of food, not nutrient, because they help us in performing various functions, but they our body do not get something special from it. They are water and roughage. Roughage, it is also called as dietary fiber. Water and roughage. वाटर के बगैर हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स वर्क ही नहीं कर सकते. हमारी सेल का, हमारी बॉडी का 70% पार्ट वाटर से बना हुआ होता है. वाटर प्रोवाइड सॉल्वेंट, what we say, most of the substances are soluble in water, so it provide base for solvent to
what? Add. Okay, so in this way water is very important. लेकिन वाटर से हमें न्यूट्रिएंट्स कुछ नहीं मिलते, बट वाटर के प्रेजेंस में बाकी के न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो सकते हैं. ब्लड का मेन कंपोनेंट है वाटर. ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वाटर. एंड रफेज, रफेज मीन्स डाइटरी फाइबर्स. आपकी मम्मी कभी अगर सब्जी वगैरह तोड़ती है तो देखा है पालक वगैरह उसमें से धागे जैसे निकलते हैं, निकलते हैं धागे धागे. शेवग्याची शेंगा फॉर एग्जाम्पल, उसको तोड़ोगे ना तो ऐसे लंबे लंबे उसमें से क्या निकलते हैं? तार निकलते हैं. दैट इज डाइटरी फाइबर्स. डाइटरी फाइबर्स हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते. इट कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज जो हमसे डाइजेस्ट नहीं होती. लेकिन डाइटरी फाइबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प अस टू क्लीन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन रखने के लिए आपको क्या करते हैं? डाइटरी फाइबर्स यानी कि रफेज हेल्प करता है. सो दीज आर टू कंपोनेंट्स ऑफ food, additional components of food. Okay, so we can say that there are 7 components of food. We are going to discuss then कौन से फूड में कौन सा कंपोनेंट हमें मिलता है, कौन सा न्यूट्रिएंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है. ये सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में. नोट्स बनाने हैं इसके से. हाँ,